record there once in a month for all the police. We have given them the booklet also how to enter that. We will take some more classes if you want. Dr. Devdutt and Mr. Jones will visit all these to find out if you have any problem. Maybe to start with, we may have some problems of current culture na कसे करपाचे, blood में wrong येऊ शकता है किंवा reading में. So it's first 15 days we will just go on doing everything. Tell us what is the problem. If any problems are coming, we will try to sort it out. I am there, Devdutt is there, Jones is there. They will visit all your 14 police stations and see that everything works out. Maybe from March, actually we will have a proper data which is we will have to calculate. To start with, because I know you have problem with getting sometimes error comes. Sometimes that important point is about the same needle you can't use for everyone. So we have given everyone separate needle. So please remember that we have to change that needle. Otherwise, the same needle you use for too many days, it will spread infection. So per day, if I think around 100 police are there in each police station approximately. So maybe you will have to check only 3 to 5 people every day. So that we have selected 3 people from each police station, 2 male and 1 female. So they can identify among themselves who will do on which particular day and which are the police station police officers or staff which has to do that. And they have put it in a write that all of the parameters and they just take a photograph and send to us. Then we will feed it in the computer so that by the end of the 1 year we will know how many new diabetics are diagnosed, how many new hypertension people have diagnosed, how many are overweight which we could control the overweight by some exercise or we can give them some trainings on all these things. And if they are already hypertensive, we know that his pressure is increasing. So the pressure should is low. At least we can quickly take it to the police nearby health center and take it. So overall, it will be a very big help to all the police stations. So I am extremely happy that we are having this session today here. We will have the launch after everything. Now I request our DGP to say a few words on this. Dr. Shekhar Sarkar, Indian Medical Association Goa, DIG Headquarters, SP North, वायनाड, केसी नागपाल, मीडिया के साथी दोस्तों, फिटनेस के बारे में जितना काम किया जाए उतना कम है। अभी पिछले 6-7 महीनों से हम लोगों की कोशिश कंटिन्यूअस ये रही है कि सब लोगों को फिटनेस की तरफ ले जाया जाए। एक बार फिटनेस की आपको आदत लग जाएगी तो आपको किसी को जगाना नहीं पड़ेगा। जैसे ट्रेनिंग के दिनों में भी हम देखते हैं कि जब हमें आदत लग जाती है, शुरू में लगता है कि सुबह 4:30 या 5 बजे जो पीटी होती है 1 महीने तक तकलीफ देती है और उसके बाद कोई सुबह ना उठाए, किसी छुट्टी के दिन मान लो पीटी नहीं लगता है, आज क्यों नहीं उठाए, आज क्यों नहीं गए। तो फिटनेस भी एक किस्म का एडिक्शन है और ये बायोलॉजिकली प्रूफ है। केमिकल जो बायोकेमिकल एनालिसिस आप करते हो तो आप देखोगे कि जो एडिक्शन वाले लोगों के मन में जो जिनको नशे का एडिक्शन होता है, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और माइंड और ब्रेन का जो हिस्सा एक्टिवेट होता है, फिटनेस के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। सेम हार्मोन्स रिलीज होते हैं और सेम, तो फिटनेस भी एक किस्म का एडिक्शन है और गुड एडिक्शन है, अच्छा एडिक्शन है। क्योंकि फिटनेस से केवल हम अपने फिजिकल जो हमारा फिजिकल एक्सप्रेशन है, हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारे अस्तित्व का, न केवल उसको ठीक करते हैं बल्कि ओवरऑल जो हमारी मेंटल वेलबीइंग है वो भी फिटनेस से अच्छी होती है। हम खुश रहते हैं, खुश रहना सीख लेते हैं। अगर आपका ध्यान अपने को फिट रखने पे, फिजिकली हेल्दी रखने पे, तो आप देखोगे कि मेंटली भी आप अच्छा फील करते हो। आप 1 घंटे कभी बाहर जाते हो, पसीना बहा के आते हो, उसके साथ आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, दुख हैं और जितनी भी परेशानियां हैं सब उस पसीने के साथ निकल जाए। तो इसलिए इसको अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए कि चलो ये तो अब हम लोग एक ऐसी उम्र में आ गए हैं और लोग यहाँ पे बैठे हैं, इधर कुछ ये लोग बैठे हैं और यहाँ
कई हमारे पीएच भी बहुत अच्छा फिटनेस पे काम करते हैं, मैंने देखा है। उस दिन हम लोगों ने रनिंग मिरामार बीच पे की थी। पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि यहाँ क्या फर्क पड़ता है। मैं वैसे लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि उनको अभी जगाने की हमें आवश्यकता है, उनको भी इस कैंप में खींच के लाने की आवश्यकता है। ये चलता है, रहने दो, ठीक ही है, क्या ऐसी आफत आ रही है कि सुबह उठ के करें, इस मेंटेलिटी से निकलने की आवश्यकता है। और पुलिस बल के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि डे 1 जब आप ट्रेनिंग में ज्वाइन करते हैं और आपको फिटनेस का मंत्र दिया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी और फोर्स में, ऑर्गेनाइजेशन में इतना फिजिकल फिटनेस पे काम नहीं होता है ट्रेनिंग के दिनों में जितना पुलिस की ट्रेनिंग में होता है। वो क्यों होता है? उसका कुछ कारण है, क्योंकि आपकी फिटनेस से जो समाज है वो सुरक्षित है। आप जितने ही हेल्दी रहोगे, जितने ही काम करने की आपकी क्षमता होगी, और आप पुलिस में काम कभी खत्म ही नहीं होता, सुबह से शाम तक कभी खत्म नहीं होता, आप कितना भी काम करें। तो इसलिए आपको कैपेबल बनाने के लिए जो वर्कलोड है, उसको वर्कलोड को संभालने के लिए फिटनेस पे इतना जोर दिया जाता है। लेकिन पुलिस फोर्स में आने के बाद साल जब बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि शायद हमें अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। डे 1 से लेके 60 साल में जो आप रिटायर होते हैं, तब तक आपको फिटनेस का सेम लेवल मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने पिछले साल तो रन फॉर किया था 5 किलोमीटर, लेकिन इस साल मैंने तभी कह दिया था कि इस बार हम 10 किलोमीटर करें, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जिसने पिछले साल 5 किलोमीटर कर दिया था, ये सुनकर रेडी को 10 किलोमीटर किया। और अभी उस दिन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब 2 अक्टूबर को हमने किया था तो बहुत लोगों को रिमाइंड करना पड़ा था, उठाना पड़ा था, जगाना पड़ा था कि आओ, इसमें आओ। फिर भी 700-800 लोग आए थे। लेकिन इस बार बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के सिंपल एक वायरलेस मैसेज पे ही 600-700 लोग आ गए थे। और ये अभी जो पिछले संडे को एसपी नॉर्थ और एसडीपीओ पैचिंग ने किया था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और उसके बाद भी कहीं जा रहा था 2 घंटे के बाद, तो मैंने देखा कई पुलिस वाले वो जो टी शर्ट हमारी थी कि फिट कॉप्स एंड सेफर स्ट्रीट का नारा पीछे लिखा हुआ था, उस स्लोगन लिखा हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मुझे कई सिटीजन्स ने बताया कि आज हमने इस तरह की जो मैंने खुद भी देखा, कोई और लोगों ने भी बताया कि देखो इससे अच्छा एक मैसेज है। तो ये जो अभी डीआईजी साहब ने IR बटालियन के अंदर में बहुत ही अच्छा शुरू किया है। हर दिन सुबह के टाइम में ट्रेन परेड रनिंग योगा कुछ न कुछ होता है। यहीं जॉगर्स पार्क में पिछले सैटरडे को उस दिन यहाँ हो रहा था, उसके पहले हम लोगों ने भी किया था। तो हर सैटरडे को या संडे को यहाँ जॉगर्स पार्क में भी योगा हो रहा है, जो आसपास के लोग हैं। तो मेरा कहना है कि जहाँ पे भी हो, इंडिविजुअल कैपेसिटी में या कलेक्टिव एक्टिविटी के तौर पे कम से कम घंटे भर अपनी मेंटेनेंस, बॉडी के मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग पे जरूर ध्यान देना चाहिए। उसका माध्यम चाहे जो भी हो, आप रनिंग करो, आप वॉक करो, आप मेडिटेशन करो, योगा करो, स्ट्रेचिंग करो, एनीथिंग। पर घंटे भर जिस शरीर से आप सालों भर काम लेते हैं, हर दिन काम लेते हैं, किसी दिन इसको रेस्ट नहीं देते हैं, उसके ऊपर काम करना, उसकी सर्विसिंग करके रहना बहुत जरूरी। ये चीज़, ये सबसे पहले आपके लिए, संस्था के लिए, फिर आपकी फैमिली और समाज। इस पर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग अभी चल रहे हैं, इस रास्ते पे आगे चलते हैं, और वह पुलिस को हिंदुस्तान की सबसे फिट पुलिस और सबसे प्रोफेशनल पुलिस, और ये अचीवेबल है क्योंकि गोवा इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी देता है। आप कोई दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड शहर में नहीं रहते, जहाँ पे खेलने की जगह मिलती है, न चलने की जगह मिलती है, न हवा अच्छी है। यहाँ तो साफ सुथरी हवा, हर दिन एक खूबसूरत दिन होता है, सुबह इतनी अच्छी धूप निकलती है, शाम को फिर मौसम इतना अच्छा हो जाता है। तो इस चीज़ का मतलब ये नेचुरली गिफ्टेड प्लेस है। तो आप में और यहाँ के मौसम और क्लाइमेट में इस जो सामंजस्य और हार्मनी है, उसका फ़ायदा उठाते हुए इस लक्ष्य को अचीव करना है। इस तरह हम लोग चलेंगे, और इस लक्ष्य में हमें माननीय CM साहब का भी आशीर्वाद प्राप्त है। कंटिन्यूसली जो है वो एनकरेज करते हैं कि हमें फिटनेस की तरफ जाना चाहिए। और IMA हमारे मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस के लिए भी हमारे साथ खड़ा है, और ऑफकोर्स वाइनाल भी इसमें हमारे साथ दे रहा है। इसलिए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारी मिडिल लीडरशिप है बिटवीन PI एंड DYSP एंड
टू एसपी, आप लोगों का ये थोड़ा सा दायित्व है और मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप अपनी अपनी कमांड की फोर्स को जो है इस फिटनेस के रास्ते पे ले चलें। तो हम लोग माननीय पीएम का जो सपना है फिट इंडिया का, उसकी तरफ एक मजबूत कदम उठाएं। जय हिंद। Hello. Thank you, sir, for our nice guidance. And what he said is absolutely correct. We are doing servicing of our car regularly. Because if we don't service the car regularly, then it might fail any time. But we are not taking care of our machine, which is there, which keeps you going for continuously for so many years. You must thank God that the heart beats continuously, irrespective if you look at it or not. We have our Secretary Akshat Kaushik is the nodal officer for this issue. I want you to tell them that will pick these instruments. Respected DGP sir, DIG headquarters sir, Dr. Salkar and Varun ji. सर जब ये पहली बार वायनाड हमारे पास ये डॉक्टर जोन्स के माध्यम से लेके आए थे प्रपोजल, तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि ये किस तरीके से ये लेआउट होगा और क्या होगा। बट टुडे आई एम प्लेजेंटली वेरी सरप्राइज्ड एंड वेरी हैप्पी कि ये बहुत ही एक अच्छा एक पूरा एक कॉम्पैक्ट सा एक पूरा सिस्टम बना के दिया है उन्होंने। बिकॉज कई बार मैं देखता हूँ आजकल हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर, इवन ऑफिसेस के अंदर, यू फाइंड दैट इतना स्ट्रेस लेवल्स लोगों में बढ़ने लगे हैं, देन ऑफन यू कैन फ्रॉम देयर फेस फील कि किसी का बीपी का कुछ या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, देन समटाइम्स टर्न रेड, कभी उनका शुगर लो हो जाता है, देन यू हैव टू सेंड देम टू जो भी पास में हॉस्पिटल है कि एक बार जाके आप उनका बीपी चेक करवा के आओ और शुगर चेक करवाओ। और उसमें कुछ समय चला जाता है, 20-25 मिनट गाड़ी लगने में जाने में। एंड अब ये सब चीज़ें करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब पुलिस स्टेशन के अंदर ही ये सुविधा आपके पास मौजूद रहेगी। और जितना मैंने देखा है गोवा पुलिस के हमारे सभी लोग बहुत जिम्मेदार हैं और सब बहुत फिट भी हैं। और लेकिन इसको ये मशीन का आप यूज़ करें अच्छे से। अभी मेरे को लगता था मैं फिट हूँ, पर अभी जब मैंने मशीन अभी यूज़ किया तो मुझे तब से थोड़ी अपनी फिटनेस की चिंता बढ़ गई है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ओनली वायनाड एंड डॉक्टर सालकर की, मेरे को ऐसा लगता है कि ये मशीन हम पुलिस स्टेशन में पहुंचवा देंगे, लेकिन एक थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव 2-3 दिन की आप ट्रेनिंग अच्छे से दे दीजिए, क्योंकि स्पेशली जैसे शुगर चेक करने का है, बीपी चेक करने का है, और इसकी अच्छे से मेंटेनेंस रहे मशीन की, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप एक वी विल फैसिलिटेट, और जो PIs हैं वो किसी 2 जिम्मेदार लोगों को आप उनकी ये जिम्मेदारी लगा दें कि उनके हवाले है ये मशीन और उन्हीं को ट्रेनिंग दें। और ऐसे ना रहे कि जो मालखाना इंचार्ज है उसके इसको दे दें कि अब आपका काम है, इसको आप उसको दें जो थोड़ा सा फिटनेस को और इन चीज़ों को थोड़ा जिम्मेदारी से लेता है। थैंक यू। Thank you, sir. It's very important what he said, that you have to take good care of this instrument. They are very delicate instruments, and please don't take them home to see your pressure and BP of your parents and your friends. So this is meant for the police. So I hope that you will take good care of yourself and the machine, and we will come out with some good data at the end of 1 year that this is really beneficial or not. That we can decide about the future course of action. Now I request our minor CEO to say a morning everyone. I couldn't agree more with sir about how physical fitness is very important for mental fitness, and we're very happy to be part of this initiative to support everybody. And special thank you Dr. Salkar for making this happen. And as you said, it's a pilot for 14 police stations. If it's a success, we'll go ahead and do more police stations, and we'll continue working with you guys. Thank you so much.
Now I request DGP and other dignitaries to come down and hand over it officially to the our nodal officer, SP North. One picture. Yeah.